Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajasthan. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 4, motion in plane after the projectile motion after the time of flight. आपको ये वाला टॉपिक समझने के लिए आपको दो टॉपिक और आने चाहिए. फर्स्ट वन प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन? In the principle of the projectile motion, we study the equation of projectile motion. Y will be equal of ax minus bx square. What is the mean of the ax minus bx square? This equation define the parabola. Parabola, that means the path of projectile motion defined as a parabolic path. हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बहुत अच्छे से सीख लिया था कि हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, ना तो वो स्ट्रेट होगा ना तो सर्कुलर होगा, सिर्फ कैसा होगा, पैराबोलिक. ओके स्टूडेंट, इन द सेकेंड डेरिवेशन दैट मीन्स द टाइम ऑफ फ्लाइट वी डिफाइन दैट t इक्वल टू 2 into t. द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल ऑफ 2 into t. व्हाट इज द मीन ऑफ द t? हम ये भी समझेंगे, दैट मीन्स हाफ path time taken, और यहाँ पर कैपिटल T that means a time of flight. But today we have to study about the horizontal range. What is the mean of the horizontal range? What is the mean of maximum height? हमको दो टॉपिक और पढ़ना है. फर्स्ट वन इज द horizontal range and second one is the maximum height. Student, here we draw a simple diagram. ध्यान से देखिए, ठीक है. इस डायग्राम के लिए मुझे दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए. अगर जो आप नॉर्मल भाषा में समझे तो दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ पॉजिटिव वाई एक्सिस. बट अगर जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर ये क्या है. अगर जो हमने किसी एक पर्टिकुलर स्टोन को किसी एक पॉइंट से फेंका है तो दिस पाथ आर नोन एज द प्रोजेक्टाइल पाथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. लेट वी कंसीडर O इज अ इनिशियल पॉइंट एंड A इज अ फाइनल पॉइंट ऑफ स्टोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. समझ रहे स्टूडेंट, O से हमने पत्थर को थ्रो करा है और वो प्रोजेक्टाइल पाथ के माध्यम से कहाँ पर आएगा, A पर. O is the initial point and capital A that means a final point. Okay student, and these distance between O and B are known as capital R. Capital R, that means a horizontal range. What is the meaning of the horizontal range? A horizontal distance between the initial and final point are known as horizontal range. It is represented by capital R. And what is the proper definition of horizontal range? Horizontal range, capital R, equal to horizontal velocity into टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब मुझे ये डेरिवेशन करने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, दो चीज़ों की. फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज द मीन ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन. लेट वी कंसिडर फ्रॉम द ओरिजिन u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. u क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. द कंपोनेंट ऑफ u डिफाइंड बाय द ux एंड uy. व्हाट इज द मीन ऑफ द ux दैट मींस अ horizontal velocity and uy that means a vertical velocity. ux that means a horizontal velocity and uy that means a vertical velocity, such that we can write capital R equal to ux into t. आपको बात समझ आ गई. horizontal velocity that means a ux and time of flight defined by the capital T. अब ये समझते हैं ये डायग्राम क्या बोल रहा है. Let we consider this is a horizontal line and this is a vertical line. This is a horizontal axis, this is a vertical axis, and this is, that means a O, P and A is a projectile path. U is a initial velocity such that ux is a horizontal component of U and this is a vertical component of y axis.
Let we consider theta is the angle between the initial velocity and the horizontal axis such that due to this theta, here we defined u cos theta and here we defined u sin theta. Okay student, u cos theta and u sin theta. Now explanation of this diagram. Let we consider any body is projected with the initial velocity u. U is the initial velocity and angle will be equal of theta. Okay student, then after theta with the horizontal, that means angle theta with the horizontal axis. The component of u are as follows. दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कितने कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट? दो. पहला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफाइंड बाय द यू एक्स, दैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस. वर्टिकल कंपोनेंट डिफाइंड बाय द यू वाई, दैट मीन्स ठीक है अलोंग वाई एक्सिस. यू एक्स विल बी इक्वल ऑफ यू कॉस थीटा एंड यू वाई विल बी इक्वल ऑफ यू साइन थीटा. ओके स्टूडेंट, the time taken by the projectile to travel from O to A, मतलब मुझे O से A में जाने में जो टोटल टाइम लगेगा विच डिफाइंड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, उस चीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टाइम ऑफ फ्लाइट. अब देखिए मुझे क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट मीन्स कैपिटल आर. और उसके लिए मुझे दो चीजों की सख्त आवश्यकता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना? u cos थीटा. बट टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मींस कैपिटल T. तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर जो आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो कोई इशू नहीं होगा, बट मार्किंग के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट को भी ड्राइव करना चाहिए. नाउ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस. ध्यान से देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस. इनिशियल वेलोसिटी को आप u से बोलते हो. u दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, बट अलोंग द वाई एक्सिस दैट मीन्स ओके स्टूडेंट. सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स 0. और अगर जो यही फाइनल वेलोसिटी होती तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता? इन ब्रैकेट t. इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ u sin थीटा. ओके स्टूडेंट, अलोंग y एक्सिस. ठीक है. नाउ एट अ मैक्सिमम हाइट, देखिए किसी भी पत्थर को, ठीक है, किसी भी पत्थर को ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ में हम थ्रो करेंगे तो इसका मोशन ऐसा होगा, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से, ठीक है, वो रिटर्न आना चालू करेगा. तो जब वो रिटर्न आता है तो सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए रुक जाता है. इसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ रेस्ट. दैट मीन्स एट अ मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0. क्या बोलूंगा मैं? फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अलोंग वाई एक्सिस, ब्रैकेट में कितना आएगा? t. तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0. कब? देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 यहाँ पर बोला था, बट ये मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट दैट मीन्स कंडीशन ऑफ रेस्ट, और कंडीशन ऑफ रेस्ट में फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0. एंड एक और चीज देखिएगा, ए वाई विल बी इक्वल ऑफ माइनस जी. ये समझाता हूं मैं. ठीक है, आप पत्थर को कौन सी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं? आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड. और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? ग्रेविटी नीचे. दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ये कितना होगा? ए वाई विल बी इक्वल ऑफ माइनस जी. ओके स्टूडेंट, ए वाई विल बी इक्वल ऑफ माइनस जी. नाउ we defined a derivation firstly for the time of flight. और टाइम ऑफ फ्लाइट से जो वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे horizontal range into time of flight में. then finally we getting the resultant formula for the capital R. चलिए ध्यान से देखेंगे. ठीक है, we know that by the first equation of motion v will be equal of u plus at. आपको मैं यहाँ पर धीरे धीरे समझूंगा. ठीक है, अब मैं इसको कौन सी एक्सिस में ले रहा हूँ? y एक्सिस में. तो जो y एक्सिस में लेगा तो ये कितना होना चाहिए? y. और ये भी कितना होना चाहिए बोलिए? ठीक है, ये भी हो जाएगा y में. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय t एंड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय 0. ठीक है, आगे था a रिप्लेस बाय द ay, दैट मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द y एक्सिस, एंड हियर इज अ t बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ध्यान से देखेंगे, Vyt will be equal of 0 and Vy0 will be equal of u sin theta plus ay. The value of ay
will be equal of minus g into t such that we getting 0 equal to u sin theta minus gt such that negative convert into the form of gt equal to u sin theta such that small t यहीं पे कर लेते अपन small t will be equal of u sin theta ठीक है ये g जो इसके इनटू में है सामने वाले के अपॉन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट व्हाट इज द मीन ऑफ द t what is the mean of the t that means a time taken from o to p from o to p will be equal of small t such that by definition of time of flight we can say t equal to 2 into t that means 2 into u sin theta by g such that capital T equals to 2u sin theta by g equation number second. Student, this is a expression to define time of flight. Now next part of question we have to find horizontal range. ये आज का हमारा जो क्वेश्चन है ठीक है horizontal range. What is the mean of the horizontal range? By definition of horizontal range we can say horizontal velocity into time of flight horizontal velocity defined by ux मैंने अभी आज बता this is a horizontal and this is a vertical. This is a horizontal velocity, this is a vertical velocity. Horizontal velocity defined by the ux and time of flight defined by the t. ux will be equal of u cos theta, so u cos theta into capital T will be equal of 2u sin theta by g such that student ध्यान से देखेंगे we getting the 2u into u square and here is a sin theta and here is a cos theta whole divided by g. मैं इस 2 को ठीक है वेरी गुड मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू नो दैट वेरी वेल 2 sin theta cos theta will be equal of sin 2 theta such that student we know u square sin 2 theta whole by g that is the final result for the horizontal range. Okay student, r will be equal of u square sin 2 theta by g. Student, this is a final expression for the horizontal range. Now we define the maximum horizontal range. Okay student, case when sin 2 theta will be equal of 1. What is the mean of the 1? Sin 2 theta will be equal of sin 90 degree. As you know that sin 90 will be equal of 1. Sin 90 कितना होता है student 1. After the comparison between the sin and sin we getting 2 theta will be equal of 90 degree such that theta equal to 45 degree. मतलब हम क्या बोल सकते हैं जब भी किसी पत्थर को या ऑब्जेक्ट को फेंको तो अगर जो बनने वाला एंगल 45 डिग्री है तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी. दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप वी नो दैट वेरी वेल आर विल बी इक्वल ऑफ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय कैपिटल जी. वी हैव टू पुट थीटा इक्वल्स to 45 degree. So R convert into the form of R maximum, that means a maximum horizontal range such that u square sin
2 into 45 will be equal of 90, and G sin 90 will be equal of 1, such that R maximum horizontal range will be equal of U square sin 90 equals to 1. This is a final expression for maximum horizontal range. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है. व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज? आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. ध्यान से देखा आपने, वो डायग्राम में जो हटा चुका हूँ उसमें हमने देखा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल ux. मुझे क्या की जरूरत है? टाइम ऑफ फ्लाइट. तो मैंने सबसे पहले डेरिवेशन में निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट. बाय यूज ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर. दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज. बट अगर जो आपसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछे तो नेसेसरी कंडीशन विल बी इक्वल ऑफ 45 डिग्री. दिस इज अ फाइनल रिजल्ट to define the maximum horizontal range. I hope student you getting the proper concept related to horizontal range and maximum horizontal range. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like, subscribe, share and also study from our channel. Thank you so much.